So guys, what is the next analysis we would be talking about? It is cluster analysis. Okay. So first was regression, second was factor. Now it is cluster analysis. What is cluster analysis? So let's take an example. For example, there is a company and it is launching a new mobile. Okay. What it is doing, guys? Tell me. It is launching a new mobile and the cost of the mobile is like the selling price 1 lakh rupees. Yes or no? Understood? 1 lakh rupees. Now, is it going to target everybody in India to buy that mobile? Can everyone buy that? No, ma'am. No. How to decide which segment of the society of, or I can say the which segment of the population to target? Got it? कैसे डिसाइड करोगे कि किसको बेचना है, किसको टारगेट करना है? बना है मतलब जैसे कि वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है बहुत ज्यादा, तो वो यूथ के लिए हो गया मतलब। हाँ, राइट. सो और के बेसिकली हिसाब से यस, तो थोड़ा I got ओल्ड the point. Basically, this is called cluster analysis. Basically, हमें पूरी population को clusters में divide करना है, and then we are going to position that product in the market. Are you getting my point? What it is doing? तो आप सबको target नहीं. सेगमेंटेशन हुई ना मैम ये तो एक तरीके से। Yes. So this is a segmentation. This techniques is used for segmentation. You are right. This is segmentation. So cluster analysis is used for segmentation. Getting my point? Yes, ma'am. At whom to target for your product. You cannot market for everyone that buy this product. No, you have to select your audience, right? You have to select your audience. Yes or no? Right. Right. Let's take another example. For example, I open my institute where I'm teaching this thing, this subject, which I'm teaching to you. Now, how to pick up the students? Enrollments कैसे लेके आओगे? Registrations. I cannot go to each and every one, every shopkeeper. ये course कर लो, मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरा institute है. Can I do this? No, ma'am. No. I have to decide my audience. I have to decide whom to target, how to segment this, correct? So this thing is taken care using cluster analysis. Understood what is the application? Understanding the application is very important, guys. हर चीज का use आपको पता होना चाहिए हम ये क्यों कर रहे हैं, right? Right? Tell me. Right. If you do not know the application, for example, आपने बस पढ़ लिया, अच्छा ऐसे cluster करते हैं, ऐसे factor करते हैं, ऐसे regression करते हैं. कल को आप कॉर्पोरेट में जाओगे, आपका मैनेजर आपको बुला के बोलेगा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बताओ क्या कैसे एनालिसिस करना है. तो जब आपको एप्लीकेशन आपने पढ़ा ही नहीं, आपने समझा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या करना है वहां पे. आपको आता होगा टेक्निकली, बट आपको ये नहीं समझ में आएगा यहाँ पे करना क्या है, राइट? सो प्लीज फोकस ऑन यूज केस एंड एप्लीकेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस और नो गाइस? Yes, ma'am. Right. So what is cluster analysis, guys? Cluster analysis is a powerful data mining tool that helps organization to identify discrete group of customers, sales transactions, or other types of behavior and things. अभी मैं इसको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी. Just a second. ना फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमें ये टारगेट ग्रुप ढूंढने में मतलब ढूंढने में हेल्प करता है. यस, हेल्प करता है. अब मान लो आपने 10 लोगों को लिया, ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ उन 10 लोगों में से 3 ग्रुप बना दो, 3 क्लस्टर बना दो. तो आप ऐसे थोड़े कि रैंडमली उठा के चलो तुम 3 इसमें जाओ, तुम 3 इसमें जाओ, तुम 3 इसमें जाओ. नो. व्हाट विल यू डू? यू विल ट्राई टू पुट सम क्वेश्चंस, राइट? अच्छा, आप और आपको किस चीज क्यों बनाने हैं ग्रुप्स? फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन बेचने के लिए बनाने हैं. तो आप उनमें से पूछोगे किसको शौक है, आपका इनकम ग्रुप क्या है. 1 लाख का मोबाइल खरीदने के लिए इनकम भी तो होनी चाहिए. हैबिट्स कैसी हैं, एजुकेशन लेवल क्या है आपका. तो रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछोगे. यस और नो? यस मैम. Accordingly, on the basis of their answers, you will put them in groups, right? यस. तो yes, तो हुआ क्या? फॉर एग्जाम्पल एक क्लस्टर में 3 लोग गए, दूसरे क्लस्टर में 3 लोग गए, तीसरे क्लस्टर में 4 लोग गए, 10 लोग हो गए, राइट? 3 क्लस्टर बने. अब पहले क्लस्टर में जो लोग हैं वो विद इन क्लस्टर एक जैसे हैं, उनकी हैबिट्स एक जैसी हैं, राइट? लेकिन अगर आप
अक्रॉस क्लस्टर्स उनको कंपेयर करें, उनकी हैबिट्स अलग अलग है, तभी तो वो अलग अलग क्लस्टर्स में हैं, राइट? यस और नो? तो ऐसे हम लोगों को क्वेश्चंस पूछ के डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में डालते हैं एंड देन वी सी विच क्लस्टर वी नीड टू टारगेट, तो उससे सेगमेंटेशन हो जाता है प्रोडक्ट का. यस मैम. Now you can plan your marketing and all other stuff as per this analysis कि हमें उन लोगों को टारगेट करना है, राइट? यस और नो? वो डेटा क्या होगा उसमें? अभी आ रहे हैं, प्रैक्टिकली करेंगे, बस आप अभी कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो. डेटा पे आ रहे हैं, राइट? गॉट माय पॉइंट गाइस? मैम यस. मैम जो मैम पढ़ा लिखा भी नहीं होता वो भी 1 लाख का फोन खरीदता है, तो मैम इस केस में फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करें क्लस्टर बात में पढ़े किसका लिखे आएंगे? की नहीं है. अगर पढ़ा लिखा है और 20,000 रुपये महीना कमा रहा है तो वो 1 लाख का फोन नहीं खरीदेगा. गॉट इट? आपको इनकम भी चेक करना होगा उसका. यस और नो? जैसे एग्रीकल्चर में मैम जैसे फार्मर्स होते हैं उनके पास अच्छी खासा इनकम होती है मैम, वो भी लोग खरीद लेते हैं। लेकिन अगर वो बोले मैं टैक्स सेवी नहीं हूँ, मुझे तो वो बटन वाला फोन ही यूज करना है, फिर क्या करोगे? उसकी इनकम का आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना? उसे समझ ही नहीं आता वो क्या करना है हाँ, उसमें। अगर उसके पास 10 करोड़ रुपए है, वो फाइनेंशियली फोन खरीद सकता है, बट वो टैक्स सेवी नहीं है, मतलब उसको आता ही नहीं है. जैसे हमारे पेरेंट्स भी हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनको कह के थक जाती हूँ, टच ले लो, वीडियो कॉल कर लिया करो, कभी शक्ल दिखा दिया करो, बट नहीं, उनको वो बटन वाला फोन चाहिए बिकॉज दे आर कंफर्टेबल विद दैट, राइट? तो अगर उनके पास 10 करोड़ रुपए हैं, आप उनको 1 लाख का फोन बेच ही नहीं पाओगे, क्योंकि उनकी हैबिट्स में नहीं है वो यूज करना, राइट? So it not only depends upon income, but on multiple factors. Understood? यस मैम. Got it? Understood? तो अगर कोई पढ़ा लिखा है वो भी फेरी नहीं करेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी आजकल 5,000 रुपये महीना कमाते हैं, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं. आप उस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते हो, करेक्ट? तो मल्टीपल फैक्टर्स you have to study to put them into those clusters, and then accordingly you have to segment your product. Now got this? ओके मैम. Got it? यस मैम. Okay. So cluster analysis is a powerful data mining tool that helps organizations to identify discrete group of customers, sales transactions and other types of behavior and things. तो आप वो study करके clusters बनाते हो. For example, insurance providers use cluster analysis to detect fraud claims and banks use it for credit scoring. What is the meaning of this point? Can anyone explain? यस मैम, जैसे कि इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के पास डेटा होता है कि कैसे लोगों ने लोन लिया था और कैसे लोग पे नहीं कर पाए थे. Right. उस हिसाब की उस डेटा के हिसाब से आगे डिसाइड कर सकते हैं कि किन लोगों को देना है और नहीं देना है. उस हिसाब से वो क्लस्टर्स मेंटेन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा था, इनकम अच्छी थी, लाइफस्टाइल अच्छा था, वो पे कर रहे हैं वो एक क्लस्टर में. Right. अब तो समझ में आया प्रेडिक्टिव मॉडलिंग कैसे हुआ ये? Somebody was asking this question. Predictive modeling. So on the basis of the past data analysis, you are predicting something, right? And you are taking business decisions also on the basis of these analysis. कि अब इसको देना है और इसको नहीं देना है. You are doing that? I'm right. Yeah. Okay. So the most common use of cluster analysis is classification and segmentation. आप classify करते हो, आप segment करते हो, right? Subjects are separated into groups. Groups means clusters. So that each subject is more similar to other subjects in its group. मतलब अपने group में तो वो similar है, but outside the group वो different है. Got it? जो मैंने अभी आपको example दिया. Understood? Understood, ma'am. Yes, Neeti. Ma'am, I have a question that in predictive model, if we don't have the data of previous, because अभी वो product हम अपना नया launch कर रहे हैं, तो मैम फिर predictive कैसे उसमें use होगा? क्योंकि आप मार्केट In case अगर लोगों की हैबिट्स जानने के लिए आप सर्वे करोगे. मैम मोर ओवर इसमें हम अपने आपको कॉल्स आते हैं मोबाइल पे, क्रेडिट कार्ड ले लो, आप मना करते हो, फिर वो थोड़े दिन में आने बंद हो जाते हैं, राइट? Yes मैम. क्यों आने बंद हो जाते हैं? क्योंकि अब वो एनालिसिस हो गया कि ये लेता ही नहीं है, इसको कितने कॉल मिला लिए, लेता ही नहीं है, फिर आपको कॉल आने बंद हो जाते हैं. देखा है आपने ये चीज? ये ना डेटा मार्केट में फ्लोट हो जाता है, बिकता रहता है, फिर ये कॉलिंग शुरू हो जाती है, फिर एक टाइम के बाद बंद हो जाती है. ये सब इसी वजह से होता है.
मैम इन दिस केस जहाँ ma'am. पे हमारे पास लैक ऑफ डेटा होता है वहाँ पे हम कॉम्पिटिटर्स का डेटा भी तो स्टडी कर सकते हैं ना. See, there is no end to data collection, right? There are two types of research, two ways how we can collect the data: primary research and secondary research, right? तो अगर आप कॉम्पिटिटर्स का लेते हो, कैसे भी लेते हो डेटा, किसी भी फॉर्म में आप कहीं से भी ले सकते हो. इट्स जस्ट दैट यू शुड नो आया कहाँ से है, कितना रिलायबल है, क्योंकि पूरा एनालिसिस खराब होता है उससे, राइट? और कॉम्पिटिटर्स का डेटा इस केस में कैसे लोगे, क्योंकि आपके और कॉम्पिटिटर्स का फोन, उनमें कुछ तो डिफरेंस होगा जो आप बेचना चाह रहे हो लोगों को. लाइक टीजी, जैसे टीजी है कोई भी 1 लाख का फोन और दूसरी कंपनी भी 1 लाख का फोन बेच रही है, तो हम राइट. उस टीजी तो सेम ही होगी ना, जैसे कि जो लोग इतना अमाउंट पे कर हाँ, सकते हैं अगर वो और डेटा उस जिनकी प्रोडक्ट में प्रेफरेंसेस सेट हैं. होता है, आप ले सकते हो. अगर आपकी ऑफरिंग पे वो डेटा सेट होता है, आप ले सकते हो कि ये मेरे कॉम्पिटिटर का टारगेट ऑडियंस है, यही मेरा है. अगर वो चीज फिट होती है, आप ले सकते हो, राइट? अंडरस्टूड? हाँ. Got the point, Tanvi? Yes, ma'am. Got it. Okay. What is the application? Segmentation. A company wants to launch a mobile for this much amount. How to decide whom to target for high sales? ये use case है इस टेक्निक का. Similarity between factor analysis and cluster analysis. This you tell me. मैं तो बताऊंगी ही, आप बताओ मुझे. जब भी हम आगे की कोई टेक्निक पढ़ेंगे, पीछे से थोड़ा कंपेयर करते चलेंगे, तो कि ताकि माइंड इनकम में थोड़ा आ क्लैरिटी जाएगी रहे. यहाँ पे. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम फैक्टर. come again, come again. इनकम फैक्टर, द इनकम फॉर द नहीं, मैं टेक्निक्स में सिमिलैरिटी पूछ रही हूँ. कंज्यूमर. डिफरेंस और सिमिलैरिटी. समझा नहीं मैम, एक बार दोबारा बताना क्वेश्चन. What is the difference or similarity between factor analysis and cluster analysis? ओके, लाइक दैट. ओके. Yes. Ma'am, data reduction. Data reduction. Okay. Ma'am, Data reduction. What else? Your voice is coming and going. Can you please come yes, again? ma'am. Ma'am, is it audible? Yeah, fine. मैम, फैक्टर्स में भी हम एक जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम क्लब करते हैं, और क्लस्टर्स में भी हम होमोजीनियस ग्रुप्स बनाते हैं. पहले होमोजीनियस, और जो क्लस्टर्स होते हैं हाँ, वो आपस में मैं हेटेरोजीनियस. आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगी. हाँ जी. जो फैक्टर एनालिसिस में क्या होता है, जो हमने उनको क्वेश्चंस पूछे, हम उनको क्लब करते हैं, राइट? क्वेश्चंस को, जो हमने सर्वे में क्वेश्चंस पूछे, करेक्ट? यस मैम, यस मैम. यहाँ पे हम किसको क्लब कर रहे हैं? यहाँ पे हम रेस्पोंडेंट्स को क्लब कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पॉन्सेस. ये मैम difference जो Got it. पिछले एनालिसिस में आया था हमारे Understood? फैक्टर एनालिसिस में, हाँ. उसमें जो हमने 3 अलग अलग दिए थे, कन्वीनियंस, एक्सपीरियंस और ये सब, तो वो फैक्टर्स यहाँ भी तो यूज हो सकते हैं कि हम वही डेटा यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन आप वही डिफरेंस समझो. डिफरेंस क्या है? वहां पे जो 10 वेरिएबल हमने लिए थे, जिनको रिस्पोंडेंट्स ने आंसर किया था, हाँ. हम उनको क्लब कर रहे हैं, राइट? फैक्टर एनालिसिस में. क्लस्टर एनालिसिस में क्या करते हैं, हम रिस्पोंडेंट्स को क्लब कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पॉन्सेस. डिफरेंस Right. समझ में आया? राइट. बट मैम समझ. मेरा पॉइंट ये है कि जैसे हमने वहाँ पे 3 कंपोनेंट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक एक्सपीरियंस था और एक कन्वीनियंस था, ये सब. हम्म. तो वो जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे हम अगर जैसे 1 लाख मोबाइल देखे, तो वो यहाँ पे यूज हो सकती है चीज. फॉर आप ये कह रहे हो कि रिड्यूस्ड डेटा आप यूज करोगे? हम रिड्यूस डेटा आप यूज कर कर सकते हो, सकते हैं आप कर सकते हो वो रिड्यूस्ड डेटा यूज यहाँ पे. कि हम देख सकते हैं कि 1 लाख का फोन एक्सपीरियंस किसी को दे रहा है, नहीं दे रहा. अच्छा, आप ये कर सकते हो वो रिड्यूस्ड डेटा. सेगमेंटेशन. हाँ, राइट. ठीक है. क्या सिमिलैरिटी है? क्लस्टर एनालिसिस एंड फैक्टर एनालिसिस आर टू कॉमन स्टैटिस्टिकल मेथड that data analysts use to explore and simplify complex data set. This is a similarity. अभी किसी ने बोला था data reduction. Who was that female? Ma'am, I said this. What's your name? Neeti. Neeti, right? This is one similarity. We are using it to simplify the complex data, both the techniques, right? They both aim to group variables or observations based on the some measure of similarity or correlation, but they differ in their purposes and assumption. दोनों को हम correlation के बेस पे ग्रुप करते हैं, लेकिन उनका पर्पस अलग है, right? Understood the similarities in both the techniques?
Everyone, Yes, ma'am. right? What is the difference? In factor analysis, we look at correlation, but in cluster analysis, we look at the distance. I will explain this point. ये बहुत important है, आपको ये पता होना चाहिए, right? Okay. In factor analysis, we group the statements, but in cluster analysis, we group the respondents. Is this clear? The second point. Yes, ma'am, clear. Clear? Now look at this. We have two charts. This. And we have another chart. This. दोनों में correlation same है. Both the lines are parallel in this also, in this also. Right, ma'am. But दोनों में distance same है. नहीं, distance अलग है, ma'am. No. So in factor analysis, we look at correlation, which is same in both. But in cluster analysis, we look at distance. So if we go for factor analysis in this kind of data, it would be same because the correlation is same. But in cluster analysis, here the distance is less and here the distance is more. Understood? Understood, ma'am. Got it, guys? So in Ma'am, यहाँ factor पे analysis, मैम यहाँ डिस्टेंस क्या सिग्निफाई करता है? कैन यू गिव एन एग्जांपल कि Ma'am, can इसमें- I answer this? yeah, please answer this if you know this. Ma'am, if the distance is more, that means the similarities between them are not much. मतलब कि इनकी जो मतलब ये similarities है, different cluster में fall करेंगे. yeah, their Different lives and segments. dislikes are different from each other. Yes. Now, for example, I prefer a mobile within 5,000 range. And Neeti, you prefer a mobile above 10,000. Because of your different and my different habits, my purpose is something else. Your purpose is to click good pics. You want a good camera in phone. I want a small handy phone, right? Like our criteria is different. So what would be the distance between me and you? Hi? Yes, ma'am. And we will Ma'am fall means in different taste and clusters? preferences are different. Yes. And we will fall in different clusters? Yeah. So if the distance is high between two respondents, they will fall in different clusters. Got the point? This is the reason I'm saying in cluster analysis, we look at the distance, and in factor analysis, we look at the correlation. And there is no concept called distance in factor analysis. There is no concept of distance. Got it? It is totally based on correlation, and cluster analysis is based on the distance. Understood? Yes, ma'am. Yeah? Clear, guys? And you should be aware of these differences and similarities. Not many, but basic, like minimum 2 to each, right? If you will, focus on these things, I think it will become more clear in your head, right? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? Okay. Most important types of cluster analysis. So we have basically two important types of cluster analysis, two-step and K-means. Okay. तो ये techniques इसमें लिखी हुई हैं कि क्या follow करता है उसको करने के लिए. So when we will do it practically, probably we will talk about it, not in detail, but yes. And we will do the practically. So the same example which we have taken for factor analysis, that Jet Airways, we are going to take for this cluster analysis also, and we can see like how to put those, how many respondents were there? 20 respondents? You remember? How many respondents were there, guys? 20? 20 respondents, Yes, 7 ma'am. scale, and 10 variables. This was the data we had. Yes, yes, ma'am. Yeah. So we will see like how those 20 respondents are put into different clusters and how many clusters are created. So we will do it practically. Okay. Got it? Yes, ma'am. Right. And we have these important terms which we should be aware of, how to check the cluster quality, how many clusters we need to create. So we will discuss all this. Should we start, guys? Yeah. So just give me a minute and let me open the file. Can you see the screen? Yes. Okay. So now we would be importing the data, right? Same. Let's do one thing. Let's take the same file
which we have taken for factor, so that we won't have to enter all the input values again, right? So what you do, open the same file. Can anyone please open the file and share your screen so that I can guide all of you? Can you show me the model? Not this. This is the output. Can you close this? Show me the model. Yes, ma'am. Close this from the exit. Cross at the top right. I have done with the other software. Okay, other softwares, then you can skip this. So guys, what you do, just look at my screen. You remember we imported this data in factor analysis, then we put a filter, then we declared the variables, right? We entered the scale in type, you remember? Right. Right? After that, you have two nodes for factor and the output. Do one thing, delete both the nodes. Can you delete both the nodes? Just keep 1, 2 and 3 and delete the factor लास्ट वाले एनालिसिस में हमने डिलीट करना है ये. Yes, you have to delete factor analysis 2 nodes. Just put your cursor on the node and press the delete button, or you can right click and you can say delete also this way. So just keep the 3 nodes, Excel, filter and type. Rest 2 you can delete. Can you do that? Understood what we are supposed to do here? मैम ये मैक में डिलीट नहीं हो रहा. किसी को पता है मैक में कैसे होगा ये? राइट क्लिक करके चेक करो आप, डिलीट का ऑप्शन आएगा. एक बार नोट पे क्लिक करो और फिर डिलीट की प्रेस करो कीबोर्ड से. हुआ? मैम कैन यू प्लीज रिपीट? आई एम सेइंग एक बार नोट के ऊपर क्लिक करो ऐसे जैसे मैंने क्लिक किया एंड देन प्रेस डिलीट बटन फ्रॉम द कीबोर्ड. हुआ? काम कर रहा है? यस मैम. यस मैम. मैक में Delete the 2 nodes. Everyone delete your 2 nodes of factor analysis and keep these 3. मैक में नहीं हुआ मैम. आई थिंक मैं दोबारा शुरू कर दूंगा इसको. मैक में नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा, मैक में भी डिलीट होगा. स्क्रीन शेयर करो. एक सेकंड. मैम यस, मैम डिलीट के बाद क्या करना है, आप प्लीज रिपीट कर सकते हो? डिलीट हो गया. यस मैम. अर्चित आप मैक यूज कर रहे हो? यस मैम. डिलीट बटन प्रेस करो कीबोर्ड से. सेलेक्ट तो आपने किया हुआ है. नहीं हो रहा कुछ. आई थिंक Right. कंट्रोल के क्लिक करो साथ उसके ऊपर, राइट क्लिक करो. राइट क्लिक में ही खुल ही रहा है वापस. ऊपर वो सीजर बना हुआ है उस पर क्लिक करो. सीजर बना हुआ है. हो गया. डन. अब ये आउटपुट पे क्लिक करो, इसको भी सीजर से हटाओ. हो गया. डन. Now can you go to modeling? नीचे modeling, right? Okay. Everyone pay attention. Can you see he has clicked on modeling palette? सबको दिख रहा है? Everyone tell me, can you see the modeling palette? Yes, यस ma'am. मैम. Right? Ma'am, On I left have hand side, started. Ma'am, I have started my SPSS again, so I need to do it from the starting. आपने वो सेव नहीं किया था? No, ma'am. Okay, you just do that. I think it will take 15-20 minutes because you have to fill in all the agree, disagree, 7 skill labels, right? Yes or no? Yes, ma'am. Actually, it happened by mistake. So you do one thing, you focus in the class because we cannot give 15 to 20 minutes to you for that, right? Yes, Just ma'am. understand the analysis and do it later on. Okay. So guys, on the left hand side, can you see all supervised association segmentation? This one, ma'am. Can यस you मैम. see? Yes. Can you click on segmentation, Archit? Right. So the moment you click on segmentation, it is giving you segmentation related models, right? Right, ma'am. Right. One is k-means, another one is Kohunen, then two-step AS anomaly, right? Which we would be using two-step.
There is key means also. So I will be showing you 2 K means and 2 step. Okay, understood? Got it? So can you AS है या 2 step ये वाला? No, 2 step, not AS. You know, when we use AS, when you are connecting it with SPSS server. So AS stands for analytics server. When you are using IBM server, you would be using 2-step AS, but we are not using any server. Okay. So we will go for a plain one, the simple one, 2-step. Okay. So click on 2-step. Now, can you double click on 2-step? Everyone pay attention, and I can ask anyone to share the screen. So do it, guys. Can you double click on 2-step, Archit? Yes, ma'am. Done, ma'am. But I cannot share the pop-up which has come. I am not sharing your full screen. Okay, let me share my screen. But everyone understood how to add the node 2-step? Everyone clear how to add 2-step node? Yes, ma'am. Right? Now double click on this and give me a minute, guys. I'm sorry, guys. Actually, there was a very bad noise in my street, so I went on mute. I hope it is not coming now. Okay. So now when you double click on this 2-step model, you are getting this pop-up. Everyone just focus here. Yeah? Everyone. Am I audible, guys? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah? Okay. Now what will we do? As of now, we are not changing anything, but let's try to understand one thing. Can you see it has one option, automatically calculate the number of clusters? Yeah? Yes, ma'am. Right? And minimum 2. Of course, 2 clusters तो होंगे ही. एक तो नहीं ले सकते. अगर आप एक लोगे तो फिर वो पूरा population ही हो गया, right? मतलब minimum 2 तो रहेंगे ही, correct? Yes, ma'am. Everyone got it? Why minimum is set to 2? Yes, ma'am. Got it. And we have another option where we can specify how many clusters I want. We have both the options open. नंबर आ जाएंगे ना मैम? हाँ? इसमें एग्जैक्ट नंबर आ जाएंगे क्लस्टर्स के, मतलब 10 के 10 ही आएंगे. ये हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम 3 बनाना चाह रहे हैं, 4 चाह रहे हैं. We can put a number, right? So there are both ways. So if we select automatically, the tool is going to suggest us the number of clusters which is suitable for the model. Yes or no? So this number of cluster is very subjective. We will talk about it. So as of now, I am selecting automatic. Correct? Okay. Yes or no? Okay. Tell me what are outliers? What are outliers? मैम जिनका फोन नहीं करेंगे. डेविएशन बहुत ज्यादा होता है और मैम वो हमारी मतलब एनालिसिस को खराब करता है वो वेरिएबल्स. Exactly. Now, for example, let's take an example. There are 30 students in a class. Okay. Out of 30, 2 students are always scoring like 98, 99 out of 100. Always. And rest of the students are scoring 85, 90, 92, 94. But what happens? Whenever we are taking the average, the students who have scored 85, 88, they are looking bad if we compare them with the average, right? क्यों? क्योंकि वो जो एवरेज है वो 98, 99 स्कोरर्स ने खराब कर दी, करेक्ट? यस और नो? यस मैम. अब आप इस डेटा को समझो. एक ने स्कोर किया 99,
एक ने 98, 85, 86, 90, एवरेज क्या है 91.6, 91.6। यस मैम। तो ये इन लोगों का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गया, इनका अप हो गया अगर हम एवरेज से कंपेयर करें, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द डेविएशन। गाइस आंसर, यस मैम। आंसर। इफ वी आर रिमूविंग देम, इन दोनों को हटा दूं, एवरेज क्या है 87, 87। यस मैम। तो near by these people, whatever they have scored, near to this, yes or no? If you compare the scores of these two students, this is nearby average, correct? Yes, ma'am. So these are outliers. जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? समझ नहीं आ Yes, रहा तो ma'am. बताओ, आ रहा है तो बताओ। अंडरस्टूड व्हाट आर आउटलायर्स? मैम आ रहा है, Yes. रिलेटेबल एग्जांपल है क्या है? मैम, रिलेटेबल एग्जांपल है, आ रहा है समझ में। आ रहा है, ओके। नाउ टेल मी, आपको लगता है आउटलायर्स हमारे क्लस्टर एनालिसिस पे अफेक्ट करेंगे अगर हम उनको रिमूव नहीं करेंगे? डू यू थिंक सो? ये बताओ। यस मैम, या बिल्कुल करेंगे मैम। करेंगे। तो यहाँ पे एक और मैम ऑप्शन है, बिल्कुल करेंगे। exclude outliers। हाँ, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, एक्सक्लूड आउटलायर्स। कितने परसेंट? 5% ले लो कि 5% आउटलायर्स तो हटा दो, राइट? सो वी हैव दीज सेटिंग्स, गेटिंग माय पॉइंट? अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रही हूँ, इसको बाय डिफॉल्ट रखो एंड लेट्स अंडरस्टैंड द एनालिसिस वंस। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग? मैम यस, मैम आई डिडंट गेट इट कि ये अफेक्ट कैसे करेगा, मतलब एवरेज का तो ठीक है, वो एवरेज को हिला के रख देगा जैसे कि आपने मार्क्स का एग्जांपल दिया, बट इन टर्म्स ऑफ दिस वी हैव टेकन द रिस्पोंडेंट्स हु आर फ्लाइट पैसेंजर्स, इसमें कैसे अफेक्ट करेगा? कैन यू गिव एन So एग्जांपल? who has understood? Who will explain this to her? How it is going to affect the cluster analysis? Who has understood? बाकियों ने तो हाँ बोला था ना? Anyone who understood this? How the outliers are going to affect my cluster analysis? So we will do it practically. Once we are doing it, like as of now, I am not excluding any outliers. Who asked this question? मैम आई तन्वी। Tanvi, as of now, we have not excluded any outliers. यस मैम। Okay, so we will do it twice. One without excluding, then after excluding. Okay. श्योर मैम। Okay, then probably you would understand. यस मैम। So I'm running this. What is happening? Okay, so say data source it could not identify. Let me reconnect the data set. मैम Yes. मैम जैसे एक थॉट आया था, एनालिटिकली तो पता नहीं, बट मैम जैसे वेरिएबल्स अगर हम देखें तो मैम जैसे बॉस और फ्रेंड्स वाला वेरिएबल मुझे थोड़ा आउटलायर लगा, क्योंकि वो इतना इसमें वो मतलब वैलिड नहीं बैठता। आउटलायर अपने वेरिएबल के नेम से नहीं देखते, उसके रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे देखेंगे। नहीं मैम, वही मैं कह रहा हूँ, अगर मॉडल से पहले अगर हम देखें, अगर हम सिर्फ अगर डेटा देख के अगर बोलना हो तो मैम वो लग रहा है। लेट्स चेक दिस। मैं इसको एक बार फिल कर लेती हूँ, ये वैल्यूज चली थी। Ma'am, the variable which is not contributing, let's say in this case the safety was not contributing anything, so it can be an outlier, the variable which is not contributing. अभी चेक करते हैं, इसको प्रैक्टिकली करते हैं। मुझे 2 Okay. मिनट दे दो। ये Yeah, sure ma'am, no problem. it was disagree.
Okay. If I open the output, see, it is giving you this output. Okay. Can you see my screen properly, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what it has done, it has suggested to create 2 clusters. Yeah. Yes, ma'am. Right. So it says we had 10 variables, 2-step method we have used, and it is suggesting a 2 clusters. You remember we selected that option automatically decide the number of clusters, Right, ma'am. right? Can you see this cluster quality scale? Can you read this? Silhouette measure of cohesion and separation. So basically the value of this measure vary from -1 to 1. It ranges from -1 to 1. And these are the categories. Like if it is crossing this 0.2, it is fair. If it is below this, it is poor. And if it is greater than 0.5, it is good. So how is the cluster quality? Poor? Yes, ma'am. Poor? Right? मैं दोबारा बताना है वाला point. देखो ये स्केल है, इस स्केल को हम यूज करते हैं क्लस्टर की क्वालिटी चेक करने के लिए, राइट? हाँ जी, ठीक है. इस स्केल को हम कहते हैं सिलहॉट मेजर, Okay. right? It ranges from, the value of this measure ranges from -1 to 1. ठीक है. ठीक है. इसको स्टडी कैसे करते हैं? अगर ये आपका 0.2 से नीचे है तो क्लस्टर की क्वालिटी पुअर है. ये दिख रहा है आपको? Understood. ऑरेंज सेक्शन इज पुअर. Right, अगर understood. ये येलो तक आ जाता है तो फेयर है, ग्रीन तक आ जाता है तो ये गुड है. तो So it अभी is हमारी based क्लस्टर upon. क्वालिटी पुअर है, Right, right. राइट? अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे, 2 क्लस्टर में इसने रिस्पोंडेंट्स को डिवाइड किया है. एक क्लस्टर में 65% पीपल फॉल कर रहे हैं जिसमें 13 लोग हैं. कैन यू सी द लेबल? 13 पीपल आउट ऑफ 20. एंड दूसरे क्लस्टर में 35% पीपल फॉल कर रहे हैं विच हैज 7 रिस्पोंडेंट्स. तो ये मैम एक क्वेश्चन था. इक्वल डिवीजन नहीं है. Right. एक में 7 है, एक में करीब करीब 14 है जो उसका डबल है, करेक्ट? तो ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है. Archit, Right, give me ma'am. 2 minutes. I will take your queries. Right? If you look at this table here, it says size of smallest cluster 7. 7 है ना एक cluster में, and size of largest cluster 13. Yes. Yes, ma'am. Ratio क्या है? 13 divided by 7, 1.86. Right, ये ma'am. रेशियो ना 1 आइडियल होता है, मतलब सब क्लस्टर में बराबर बराबर लोग हो, दैट इज प्रेफर्ड. Okay, ठीक है. नियर 1 होना चाहिए. ये इट्स नॉट अ गुड क्लस्टर. देखो क्वालिटी भी खराब है इसकी, राइट? Right, ma'am. Right. ठीक है. अभी ये सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. मैम यस. मैम 7 13 कैसा आया? 7. स्मॉलेस्ट एंड लार्ज. एक क्लस्टर में 7 लोग हैं, एक क्लस्टर में 13 लोग हैं, ऐसे आया. ओके ओके ओके. गॉट इट? मैम हाउ डज Yes, इट ma'am. मैटर? मैम हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि क्लस्टर में बराबर लोग होने चाहिए? अगर हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि जो पॉपुलेशन ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें क्लस्टर की क्वालिटी पुअर है, राइट? तो हमें क्या करना है? डिपेंड कर हम रहा है कि इसमें मतलब क्या करेंगे? नंबर ऑफ क्लस्टर्स इंक्रीज करेंगे तो तुम देखना ये बैलेंस हो जाएगा. आपका क्वेश्चन वैलिड है कि जब हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि एक सेगमेंट में आधे से ज्यादा लोग आ गए, राइट? यस मैम. प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम रिलेटिव टू दिस है कि क्लस्टर का क्वालिटी ही पुअर है अगर हम इस स्केल के हिसाब से जाएं, राइट? यस मैम. बट Okay, मैम अभी- क्लस्टर में मतलब आगे पीछे तो लोग हो ही सकते हैं ना, एक में ज्यादा एक में. इट कैन बी अ पॉसिबल. बट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू बैलेंस इट आउट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्लस्टर्स. कि अगर इनमें इतना ही वेरिएशन है लोगों में तो फिर 2 की जगह 3 ग्रुप बनाओ ना. गॉट इट? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वालिटी. यस. अंडरस्टूड. मैम सो हमें आउटलायर्स को फिल्टर करना पड़ेगा. अभी उस पे भी आएंगे. अभी वी आर नॉट कंसिडरिंग आउटलायर्स so that I can explain you how to use the symbols, and we have few options, more options here to study, right? So just मैम एक बात understand this. पूछी. Yes. ये जो पुअर आया तो वो इस बेसिस पे आया है कि वो 13 है यहाँ 7 इसलिए. नहीं, ये इन्होंने ये मेजर कैलकुलेट किया है SPSS ने, this measure, and as per this measure it has वो अलग. plotted this. Understood? बस मैं यही जानना बेसिस पे पुअर बोला उन्होंने.
इसके बेसिस पे, इस मेजर के बेसिस पे। ये स्केल इसने लिया है ना उसको पुअर डिक्लेयर करने के लिए। ये स्केल दिख रहा है आपको? गॉट इट? राइट। क्वालिटी चेक करने के लिए तो एक नंबर ऑफ स्टैंड क्लस्टर्स नहीं लिए हैं, नंबर ऑफ क्लस्टर्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहा है वो इस स्केल में। इट इज टोटली गोइंग बाय दिस मेजर। गॉट इट? अच्छा, तो मैम क्लस्टर्स का नंबर मैटर नहीं करता क्वालिटी पे? करता है, लेकिन जब इसने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इट हैज नॉट गिवन अस दिस मेजर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्लस्टर्स। वो कनेक्टेड है। अभी मैं आ रही हूँ, मुझे 5 मिनट दो, मुझे 5 मैम मिनट। मैम एक बात बताना, ये जो क्लस्टर क्वालिटी है ये सेम होती है ना हर मॉडल के लिए? कौन से हर मॉडल के लिए? मतलब अगर हम कोई भी क्लस्टर करें परफॉर्म, तो इसका हाँ, जैसे कि -1 है, देन 0 पे भी पुअर है, तो ये हर क्लस्टर के लिए सेम ही रहेगा ना ये ये रेंज कह रहे हो क्वालिटी? आप? यस मैम। ये स्केल कह रहे हो आप? यस, इट इज स्टैंडर्ड। दिस इज स्टैंडर्ड, दिस विल रिमेन सेम। पुअर का मतलब ये हुआ कि अगर सेगमेंट को टारगेट करेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू अचीव द टारगेट्स। इसका मतलब ये है कि जो ये सेगमेंटेशन हुआ है इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी। अगर आप इसके हिसाब से, इस क्लस्टर के हिसाब से अपना प्रोडक्ट सेगमेंट कर दोगे तो वो आपका जो भी एम है वो अचीव नहीं होएगा, क्योंकि वो सेगमेंटेशन करेक्टली हुआ ही नहीं, क्लस्टर्स गलत बने हुए हैं। गॉट इट? गॉट। अंडरस्टूड? पर्पस तो वही है ना आपका, फाइनल एम तो वही है। वही राइट मैम। यस मैम यस। मैम फेयर और गुड में आ जाए तो उस केस में क्या होगा? सेगमेंटेशन फिर सही होगी या फिर उस केस में भी सेम रहेगा देखो, केस? फेयर में आए तो ठीक है, और गुड में आए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, तो हमेशा गुड टारगेट करो। लेकिन कई बार डेटा ऐसा होता है कि गुड टारगेट होता नहीं है, तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सेट्स पे क्लस्टर एनालिसिस करोगे आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी। अंडरस्टूड? ओके मैम। क्योंकि ये सारा एनालिसिस डिपेंड करता है रिस्पोंडेंट्स के आंसर्स पे। अंडरस्टूड? मैम एक चीज और पूछनी थी मैम, जैसे फेयर पे आ जाए तभी हम सेगमेंटेशन करना सही रहेगा या फिर उसको भी हमें डेटा को मैं दोबारा से देखना पे अभी पड़ेगा? आ रही हूँ। जब हम ये क्लस्टर्स का नंबर बढ़ाएंगे और इसको 2-3 बार करके देखेंगे तो मैं आपको सारी चीजों के आंसर करूँ, है ना? अभी ये देखो ओके पुअर है तो ये तो हम अप्लाई करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, अभी मैं नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ाऊंगी इसमें और फिर आप देखना कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। ओके ओके, गॉट इट? ओके मैम। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट समझो। ये सिंबल्स दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं ऊपर सिंबल्स? यस मैम। राइट? तो ये देखो, ये थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आप इस विजुअल को कॉपी कर सकते हो, डेटा कॉपी कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो एंड ऑल दैट। राइट? ठीक है, अभी ये मॉडल समरी है। यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आ रहा है नीचे, क्लस्टर्स। कैन यू सी दिस? यस मैम। इस पे क्लिक करो, क्लस्टर्स पे आ गया। तो ये क्लस्टर्स आ गए, क्लस्टर की डिटेल आ गई। आई? दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड गाइस? एवरीवन कैन सी द मैम। लेफ्ट साइड? So it says we have 2 clusters, cluster 2 and 1. In cluster 2 we have 13 people, in cluster 1 we have 7 people. Right? Right? Yes, Everyone ma'am. look here. Now tell me what it is showing to you. We have all the factors here. And it is giving you the median also simultaneously. 2, 2. Can you see this median? Everyone just tell me. Yes, ma'am. Now what will we do? Can you see these icons? There is one option where we can sort them in descending order. Okay, what will we do? We will sort them in descending order. Everyone just look into these options and read the labels. Read the labels, everyone. Can you see this option? Sort inputs by within cluster importance. Can you see this option? The third one. Yes ma'am. And after that we have sort inputs by name. So it will do alphabetical sorting, sort inputs by name. Yes or no? Everyone, Yes ma'am. check the labels and see this. This is important. Yes ma'am. Then we have what we have, sort inputs by data order and various sorting options we have. So I will click on the second one, sort inputs by within cluster importance.
Do this, everyone. Everyone just try this environment. It should be very, very handy. Take 2 minutes and try this, everyone. Done, guys? Have you tried this? मैम ये लास्ट में एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या है? कौन से वाला? एब्सोल्यूट और रिलेटिव लास्ट थर्ड एंड सेकंड लास्ट एंड थर्ड One, लास्ट. absolute distributions. राइट. अभी आती हूँ मैं, मेरे को 2 मिनट दे दो. Everyone just go through these symbols. Put your cursor and check the label. Everyone done? Yes, ma'am. Okay. Now I am clicking on this cluster 2 here. On the right hand side, it has been plotted. Cluster 2 has been plotted. Can you see this? On each and every factor, the cluster 2 has been plotted. Everyone tell me. Yes, ma'am. Yeah. If I select cluster 2 also, both, it has plotted both. Everyone, can you see this red circle? This is cluster 2 and blue circle cluster 1, right? Yes, ma'am. Okay. How to select both, ma'am? Huh? How to select both of them simultaneously? With shift key. Try with shift or control key. Yes, got it, ma'am. Got it? Right. Okay. Now which order I have selected here? Can you see when I click on this, it is giving me some importance figure also. 1, 0.94, 0.77. Can you see the importance figure as label? Yeah. Right, ma'am. Right. And I have sorted it on the basis of their importance level. I have clicked on the second symbol. Right, ma'am. Right. So they have been sorted on the basis of their importance. Which importance? So here the importance is 1, then it is reduced to 0.94, then 0.77, 0.53, and so on. So schedule is the most important point. और मैम आपका इनपुट्स और मेरे इनपुट्स में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब उसमें पहले वाले में डिफरेंस है स्केड्यूल और उसमें. कितना आ रहा है आपके में? स्केड्यूल्ड स्ट्रांगली डिसएग्री आ रहा है पहला, और स्केड्यूल रिलेटिवली डिसएग्री. रिलेटिवली डिसएग्री आ रहा है. हाँ जी. शेड्यूल. हैव यू यूज्ड सेकंड एनालिसिस? ये किया आपने? हाँ मैम, ये यूज किया सेकंड में. अच्छा, यहाँ पे ये जो प्लॉट हुआ है इसमें 1 और 2 पे आ रहा है ये? नहीं, ये भी अलग आ रहा है. स्ट्रांगली डिसएग्री, रिलेटिवली डिसएग्री, सेम. अच्छा, ओके, फोकस ऑन माय स्क्रीन, वो देखते हैं अभी. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है क्लस्टर में? शेड्यूल. उसके बाद सेफ्टी, फिर एंड सो ऑन. तो ये ऑर्डर में है, राइट? तो अब जो 2 क्लस्टर बने हैं, कैसे बने हैं? पहले क्लस्टर में शेड्यूल में जो लोग हैं, पहले क्लस्टर में जो लोग हैं वो शेड्यूल में 1 बोलते हैं. मतलब क्या बोलते हैं? ये क्या है? कोई मुझे लेबल समझाएगा? Who will explain this label to me? What is N5? What is N5, guys? Look at the 5 people lie in this cluster. and 8 here. So 13. What about rest of the 7 people?
मैम आउटलायर में डाल दिया उसने। आउटलायर तो हमने हटाया ही नहीं है, राइट? सो इफ यू लुक एट द डेटा, if you go to schedule, this one, numbers are varying from 1 to 5, correct? Right, ma'am. Right? So 8 people 1, and 8 people 2, right? Yes, Right, ma'am. right? तो 8 यहाँ आए, 5 यहाँ आए, बाकी कहाँ गए? मैम ये जो आपने बताया है कि 5 तक है शेड्यूल, 1 to 5, तो मैम वैसे जो स्केल था हमारा 1 to 7 का था, मतलब इससे ये प्रूफ होता है कि शेड्यूल में मतलब लगभग किसी जो ने 6 लोग और हैं 7 दिया ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि शेड्यूल में किसी ने 6 और 7 दिया ही नहीं है। देखो 1 to 5 की रीडिंग है ना, मतलब यस मैम, मोस्ट ऑफ द पीपल ठीक है? हैव फिल्ड फ्रॉम 1 to 5। हाँ, और एक ने 3 भरा है, एक ने 4 भरा है, और 2 ने 5 भरा है। तो क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे? 5 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 7 लोग बचे, उनको कंसिडर नहीं हुआ है, राइट? ऐसे यहाँ पे है 3 4 7 हो गए, कैसे? टेल मी गाइस, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये इन्होंने मीडियन लेके प्लॉट किया है, गॉट इट? ये यहाँ पे लेबल दिख रहा है, यस मैम। मीडियन लेके प्लॉट किया है, अंडरस्टूड? मीडियन से इन्होंने डिसाइड किया है who is nearest, they have considered that distance from median and they have considered only those. Now got it? Where are rest of the people? ये मीडियन दिख रहा है यहाँ पे लेबल में, दिख रहा है? यस मैम। Yes. अगर आप इसको ग्राफ से देखोगे, ये देखो, ये इसका ग्राफ बनाओ, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ये क्लस्टर कंपैरिजन, 4th ऑप्शन, predictor importance. So here the variables have been sorted on the basis of their importance. So which is the most important factor? Schedule, then safety, and so on, right? Can you see this scale? Least important, lifestyle, this one. Most important, schedule. So it is sorted in descending order, the same order in which I sorted my cluster, right? If you look at this, I need to plot, just a second. किसी का ग्राफ आ रहा है यहाँ पे? यस मैम। मेरा भी आ रहा था, एक सेकेंड, नॉट दिस ग्राफ, ये क्लस्टर कंपैरिजन पे मूव हो जा रहा है।
गाइस किसी का ग्राफ आ रहा है तो स्क्रीन शेयर करो एक बारी। यहाँ पे ग्राफ आएगा so that you can compare the cluster. Like for example, when you will click on cluster 2, किसी के यहाँ पे ग्राफ आ रहे हैं अलग अलग क्लस्टर पे क्लिक करने पे, and it is not turning to cluster importance. Anyone getting that? Guys, हम ग्राफ में दोनों चीजें साथ में नहीं आ रही, इधर एक क्लस्टर ही आ रहा है एक टाइम पे। can you show it to me? जब आप एक क्लस्टर से दूसरे पे क्लिक करोगे तो दोनों दिखाएगा। Is it visible? No, this is predictor importance. एक के बाद एक पे क्लिक करो, एक सेकेंड। एक सेकेंड। Yes, it worked for me. Just a second. Okay, now please focus on my screen. Yes. So guys, what happens? See, when you click on each and every input one by one, like for example, I am clicking on schedule and this is my cluster 2, right? Everyone focus here. So in this schedule, on the scale of 1, 2, 3, 4, 5, can you see? First one is half filled, second is completely filled, and fifth one is complete filled, and half of 1, 3rd, and 4th are coming grayed out. Yes? Everyone? Yes. Okay. Now, if I click on the schedule of another cluster, which is my cluster 1, everyone pay attention. This audience is different in these two factors and one is overlapping. Tell me, in schedule of cluster 2, this audience is here where the first one, this first response is filled up. थोड़ा बाउंस एक बार दोबारा बताना है चीज। देखो, अगर आप शेड्यूल ऑफ क्लस्टर 2 पे क्लिक करते हो, ये एरिया फिल्ड इन आ रहा है, ओके, सेकंड वाला पूरा फिल्ड इन आ रहा है, फिफ्थ वाला पूरा फिल्ड इन है, 3/4 छूटे हुए हैं और ये फर्स्ट का ऊपर वाला छूटा हुआ है, राइट। अगर आप शेड्यूल ऑफ अनदर क्लस्टर पे क्लिक करते हो, ये ओवरलैपिंग नहीं है, ये पहले खाली थे अब भरे हुए हैं, ये हट गया, ये हट गया, ये ओवरलैप है विद क्लस्टर 2, राइट। इसका मतलब इन दोनों क्लस्टर में कुछ लोग हैं जो कॉमन है विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पॉन्स ऑन शेड्यूल। समझ आया? ये ओवरलैप दोनों एक दूसरे क्लस्टर्स को कर रहे हैं, राइट? कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों क्लस्टर्स में कुछ लोग हैं जिनके रिस्पॉन्स कॉमन है विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल फैक्टर। ओके, तो मतलब पहले भी डिफरेंट आ रहा था, सेकंड क्लस्टर में अलग आ कुछ लोग हैं जिन्होंने 1 रेट किया है, वो क्लस्टर 1 में भी है, 2 में भी है, फिर वो अलग अलग क्लस्टर में क्यों है जब उनका रिस्पॉन्स सेम था? बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। गॉट इट? ठीक है। देखो, ऐसे आप बिल्कुल किसी को डिवाइड नहीं कर सकते कि जो बिल्कुल 4 आंसर मैंने दिए हैं वही अर्चित ने दिए हैं, तो वो तो हम अलग अलग हो ही गए। हमें अलग उस ऑडियंस को करना है जो कुछ चीजों में कॉमन भी है, कुछ चीजों में अलग भी है, फिर भी हमें वो डिफरेंशिएटेड क्लस्टर्स बनाने हैं। अंडरस्टूड? कुछ तो कॉमन रहेगा। ऐसे तो फिर क्लस्टर के लिए क्लस्टर एनालिसिस टेक्निक की यूज करने की जरूरत ही नहीं है, वो फिल्टर लगाओ और क्लस्टर बना दो, राइट? गॉट इट? तो ये पार्ट कॉमन है, बट अलग अलग क्लस्टर्स में क्यों है? बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स। करेक्ट? ऐसे आप एक एक क्लस्टर को ऐसे चेक कर सकते हो। देखो, सेफ्टी में क्या हो रहा है? एवरीवन रिमेंबर व्हाट इज हैपनिंग। 1, 2, 3 एंड 5th, ये देखो 1, 2 ओवरलैपिंग है एंड 4th इज द सेगमेंटेशन, राइट? अंडरस्टूड? सो इस तरीके से आप इस क्लस्टर का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। अंडरस्टूड हाउ टू टेक दिस
थिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे समझना है? मैम एक बार ये पीछे जिसमें क्लस्टर ऑफ टू दिखाना, जो आपने पहले बताया था इसी में। ये वाला? हाँ, जैसे हाँ इसमें फाइव वाला फुल ओवरलैप नहीं है इसमें ठीक कुछ है, भी, ठीक और है। नेक्स्ट में और ओवरलैप नहीं है। ओवरलैप तो आप दो दो कंपेयर करोगे तब चेक करोगे। देखो दिस इज फॉर क्लस्टर 2, इसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ के लोग हैं, राइट? अब आप राइट। क्लस्टर 1 पे क्लिक करो, फोर्थ डिफरेंशिएशन हो गया, पहले फोर्थ में 0 था और ये ओवरलैप है। नाउ अंडरस्टूड हाउ टू रीड दिस चार्ट? थोड़ा थोड़ा तो आई गया मैम। नहीं पूरा समझो, थोड़ा थोड़ा नहीं समझना है। मैं आपको पहले एनवायरनमेंट और इसको रीड करना बता रही हूँ, अभी एनालिसिस पे आएंगे हम। सी, अगर आप सेफ्टी फैक्टर पे क्लिक करते हो एंड क्लस्टर 2 को चेक करते हो, तो इसमें वो लोग हैं जिन्होंने 1 2 3 एंड 5 फिल किया, राइट? ठीक है। ठीक है। अगर आप सेफ्टी पे क्लिक करते हो ऑफ क्लस्टर 1, तो इसमें एक तो 4 वाले बंदे हो गए, पहले 4 वाले नहीं थे। हाँ नहीं थे। ठीक है, 1 और 2 ओवरलैप है। ओवरलैप है। ओवरलैप क्यों है? तो वो बिकॉज कॉमन अदर है फैक्टर्स में अभी। वो इनसे डिफरेंट होंगे। हाँ। ये फैक्टर टोटली डिफरेंट है, राइट? राइट। ये फैक्टर्स कॉमन है, तो ये अलग फैक्टर्स में इन लोगों से डिफरेंट होंगे, तो ये ओवरलैपिंग तो देखो रहेगा ही रहेगा, राइट? राइट। ठीक है, ऐसे ही आपको हर फैक्टर को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। मैम इसमें अभी एक जैसे मिनट, कि देखो बीच में काटो मत, एक मिनट प्लीज, ओके कम अप विद योर क्वेश्चंस व्हेन आई से। अभी क्या हो रहा है, बिकॉज ये ओवरलैप है, इसीलिए हम कह रहे हैं क्लस्टर की क्वालिटी खराब है, पुअर है ना। हाँ हाँ। जब आपकी क्लस्टर की वहां पे क्वालिटी अच्छी आएगी ना, वो फेयर और गुड में आएगा, ये ओवरलैप कम होता चला जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड द कनेक्टिविटी नाउ? हम इसीलिए कह रहे हैं ओवरलैप बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ ओवरलैप दैट क्लस्टर क्वालिटी इज कमिंग वेरी लो, वेरी पुअर। अंडरस्टूड? राइट। ठीक है। अब मैं आपको ये क्वालिटी ना चेंज होते दिखाऊंगी कैसे। अब उस पर फोकस करो। मैं वापस 2 स्टेप पे गई और यहाँ पे ना मैंने इसको ऑटोमेटिक ना करके बोला कि अब मैं इसको टेस्ट करूंगी। तो अब मैं 2 से 3 बढ़ा रही हूँ नंबर ऑफ क्लस्टर, ठीक है? ओके। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे। तो अब क्या हुआ, फाइल डिस्कनेक्ट हो गई। कुछ उड़ गया क्या? ओ शिट, डेटा चला गया। एक मिनट, एग्जिट। डिड यू अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑफ दैट ओवरलैपिंग ओनली वो क्लस्टर क्वालिटी खराब आ रहा है। जैसे ही वो राइट। क्लस्टर क्वालिटी इंप्रूव होगा ना, आप ये जैसे ही दो दो फैक्टर के क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 क्लस्टर 3 कंपेयर करोगे, वो ओवरलैपिंग नहीं दिखेगी आपको, मतलब बहुत कम दिखेगी। अगर ये ओवरलैपिंग कम है, इसका मतलब आपके क्लस्टर्स अच्छे बने हैं। अंडरस्टूड? समझ गया। ये समझ आया सबको? ये ना बहुत रॉ लैंग्वेज में क्लैरिटी है ऑन क्लस्टर एनालिसिस। अगर मैं आपसे उन हैवी टर्म्स में बात करूंगी, आपको समझ नहीं आएगा। आपको समझ में आया क्लस्टर की क्वालिटी पुअर क्यों है? क्योंकि वो ओवरलैप कर रहा था मैम। ओवरलैप कर रहे हैं रिस्पॉन्सेस। तो अगर मैंने भी एक चीज में 4 बोला, आपने भी 4 बोला, तो फिर हम अलग अलग क्लस्टर्स में क्यों हैं? हमारे तो, हम लोग तो एक जैसे लोग हुए ना फिर, राइट? तो बिजनेस के लिए तो अलग अलग ऑडियंस ही प्रेफरेबल होगी, हाँ। ओवरलैप अब ना ये हो। देखो, तो मैंने क्या किया, आई एम सेइंग कि मुझे 3 बना के दे दो। अप्लाई, ओके, रन। क्या प्रॉब्लम हो गई है? कनेक्टेड तो है। टू ही आ रहा है, सेव हुआ। 3, run, fail to open the file, this, cannot read the column names. Oh shit, file open है, sorry. ये अपने आप मूव हो जाता है।
3 है, राइट? अब जब ये 3 हुए, देखो, नाउ वी हैव 3 क्लस्टर्स गाइस. Three clusters. Still the quality is poor. Yes. Poor. Yes, ma'am. Right. Yes, ma'am. And how it has been taken like this? 25% एक में है, 35% एक में, 40 एक में. Quality poor है. इसको 4 करके देखें. 4 clusters. Better. थोड़ा फेयर में आ गए. आ गए. फेयर में आए. अच्छा 5 करें. थोड़ा सा बड़ा है. अभी कितना है? 0.3. 4 में कितना था? सेम, राइट? तो कहीं ना कहीं ये 4 और 5 पे लैंड करेगा. 2 और 3 पे तो क्वालिटी पुअर है, उस पे तो वो सेगमेंटेशन अप्लाई करना ही गलत है, राइट? 6 पे क्या होगा मैम? 5 चेक और कर 6. लेते हैं. चलो 0.3 तो ये स्टेबल हो गया है 4, 5, 6 पे, राइट? तो हम 4 के लिए वी कैन प्रोसीड, करेक्ट? यस तो मैम. 4 पे जाते हो और अब बाकी चीजें स्टडी करो उसकी. देखो 4 है, ये फेयर है, बहुत अच्छा नहीं है बट फेयर है. तो इसमें कैसे कैसे लोग डिवाइडेड हैं? एक में 4, एक में 7, एक में 4, एक में 5, करेक्ट? तो ये भी बहुत ज्यादा बुरा नहीं है. पहले वाला तो ऐसा था कि रेशियो कितना था, अभी रेशियो देखो यहाँ पे 1.75. अर्लियर इट वाज 1.8 समथिंग. अभी भी बहुत अच्छा नहीं है बट ये स्टेबल हो गया है. बिकॉज एक तो हमारे पास लोग 20 हैं, डेटा सेट छोटा है, राइट? उसका उसका फर्क आ रहा है डेटा सेट का. टेल मी गाइस, डेटा सेट का फर्क आ रहा है? एवरीवन, व्हाट हैपेंड? आयुषी, मैम क्वेश्चन क्लियर नहीं है क्या बोला? क्वेश्चन ये है, at 4, 5, 6 number of clusters we got it stable, Yes, ma'am. right? क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो पूछो, right? And we are getting it fair, we are not going into good वाला part, correct? Yes, ma'am. Right? And if we look at the cluster size, in one cluster we have 4 people, in 2, 7, then 4, then 5. If we look at this ratio of largest cluster to smallest cluster, 7 divided by 4, it is 1.75. Yes, ma'am. So they are not equally divided also, No. right? तो अगर आप उस पे जाओ क्लस्टर्स पे, ओवरलैपिंग चेक करने के लिए 4 क्लस्टर हैं. आपने क्लिक किया इनपुट्स पे, आप पहले कर रहे हो फूड पे. ये फूड आया आपके क्लस्टर 1 का फर्स्ट. ये देखो 7 रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं यहाँ पे. स्ट्रॉन्गली डिसएग्री एंड रिलेटिवली डिसएग्री वाले लोग हैं क्लस्टर 1 में फॉर द फूड इनपुट. गाइज इफ समथिंग इज नॉट क्लियर यू हैव टू आस्क. अगर आप चुप बैठोगे तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, राइट? मैं अपना पूरा एफर्ट मार रही हूँ आपको समझाने के लिए, रॉ तरीके से एक एक चीज कंपेयर करके. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम. यस मैम. तो फूड इन जो फूड का इनपुट है उसमें क्लस्टर 1 में वो लोग हैं जिन्होंने स्ट्रांगली डिसएग्री एंड रिलेटिवली डिसएग्री मार्क किया. क्लस्टर 3 में स्ट्रांगली डिसएग्री की ओवरलैपिंग है, डिसएग्री और न्यूट्रल ऐड हो गया. हुआ? यस मैम. अगर आप क्लस्टर 2 पे जाते हो, फर्स्ट और सेकंड दोनों का ओवरलैपिंग है. Can you show the overlapping of the schedule and the safety? We can see that whether the overlapping has changed or not. ठीक है, आप शेड्यूल पे आओ. शेड्यूल पे आओ. क्लस्टर 1 फर्स्ट 3, 4, राइट? अनदर क्लस्टर पे जाओ, फर्स्ट ओवरलैपिंग है, सेकंड न्यू ऐड हो गया. मैम फिर इसमें तो ओवरलैपिंग इंक्रीज होगी, सेकंड में भी हो गया, ये तो गलत हो गया ना.
ओवरलैपिंग का इंक्रीज हो गया, सेकंड तो पहले था ही नहीं ना, देखो खाली था। हाँ, तो अब मैम अगर सेकंड में भी ओवरलैपिंग आ रही है तो ज्यादा ओवरलैप होगा तो क्लस्टर की क्वालिटी बेकार होती है ना, मतलब ऐसे नहीं अब बताया। सेकंड में ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, देखो क्लस्टर 1 में हो तो रहा दो है वाले मैम। एक सेकंड 1 वाले लोग हैं, 3rd वाले हैं, 4 वाले हैं। हाँ अगर आप क्लस्टर 3 पे कंपेयर करते हो तो 1 में ये ओवरलैप है, सेकंड वाला नया इंट्रोड्यूस हो गया, तो हाँ ये ओवरलैपिंग है, इसीलिए तो क्वालिटी फेयर है, गुड का है। अच्छा अब वो समझ अब इन समझ में आ रहा कंपैरिजन है, टू पुअर फेयर और विद कंपैरिजन टू पुअर बेटर है, यस मैम। विद कंपैरिजन टू पुअर जो हम पहले कर रहे थे व्हेन वी वर हैंडलिंग 2 क्लस्टर्स, ये बेटर है, ये बेटर है कि नहीं है? यस मैम। ओवर बेटर है, ओवरलैपिंग कम होगी ना, कम हो एक गई में ही है। आ रही है वो। अगर ये गुड में फॉल कर रहा होता ना तो ये ओवरलैपिंग नेग्लिजिबल होती, अंडरस्टूड, बहुत कम होती है, होती ही नहीं, अंडरस्टूड। सॉरी। अगर आप यस नेक्स्ट मैम। क्लस्टर में जाते हो तो क्या हो रहा है, 2 की हल्की सी ओवरलैपिंग है, 5th वाले नए लोग आ गए। अगर आप नेक्स्ट में जाते हो तो 1 और 2 की ओवरलैपिंग वाले हैं, तभी ये फेयर है, इट्स नॉट गुड क्वालिटी क्लस्टर एनालिसिस, गॉट इट? अब समझ में आया फेयर, गुड और पुअर का मतलब क्या है? आगे मैम वो क्लियर। क्लस्टर्स जो लोग हैं वो प्रॉपरली क्लस्टर्स में डिवाइडेड नहीं है, मतलब वो फेयर, पुअर है या तो फेयर है या गुड है, अंडरस्टूड? दो दो सेगमेंट अलग अलग हैं वो, लेकिन उसमें वो ओवरलैप भी हो रहा है ऐसा। ओवरलैप है तभी उस क्लस्टर की जो क्वालिटी है क्वालिटी पुअर है। दैट इज नॉट गुड। राइट। और ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो हमारा डेटा सेट बहुत स्मॉल है, somebody said क्वेश्चन क्लियर नहीं है, अब ये क्वेश्चन क्लियर है कि जब मैं बोल रही हूँ डेटा सेट स्मॉल है, कितने रिस्पोंडेंट्स हैं हमारे पास? 20 जब 20। आप फोन जैसी चीज लॉन्च करते हो, एनालिसिस करते हो, आपको लगता है 20 लोगों का डेटा एनालिसिस करके क्लस्टर्स बनाते हो? नहीं, राइट? राइट। आप मैंने छोटा डेटा सेट क्यों लिया है, ताकि मैं आपको समझा पाऊं, बड़े डेटा सेट पे चीजें इधर उधर हो जाती है, मैं समझा नहीं पाऊंगी। अब आप क्या करोगे, आप इस एनालिसिस को करोगे बड़े डेटा सेट के साथ में, गॉट इट? और अब आप फोन को कैसे मार्केट करोगे, अब मुझे बताओ कि किस सेगमेंट को टारगेट करोगे आउट ऑफ दीज 4 क्लस्टर्स? फॉर एग्जांपल ये हम फोन का कर रहे थे, तो अब मुझे बताओ, पहली बात तो फैक्टर रिलेवेंट नहीं है, हमारा क्वेश्चन पेपर रिलेवेंट नहीं है, जो हमने उनको दिया रिलेवेंट है, जेट एयरवेज का डेटा है ना ये, नहीं मैम, जेट एयरवेज का है तो। राइट? तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ केस, कहीं से फोन का ही कुछ उठा लो या कुछ भी उठाओ, एनालिसिस करो, क्लस्टर्स बनाओ और फिर आइडेंटिफाई करो, ओके दिस इज द सेगमेंट, दिस इज द क्लस्टर वी नीड टू टारगेट, अंडरस्टूड हाउ इट वर्क्स? अंडरस्टूड मैम। गॉट इट एवरीवन? देखो सिर्फ 2 चीजें अंडरस्टैंड करनी है, यस मैम। पहली बात क्वालिटी, क्लस्टर, आपकी क्लस्टर की जो क्वालिटी है दैट शुड बी गुड, वो अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी होगी तभी प्रोडक्ट आप ठीक से सेगमेंटेशन कर पाओगे, तभी सही लोगों को टारगेट कर पाओगे, राइट? कैसे चेक करना है, यहाँ से चेक करना है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, मॉडल समरी आप देख लेते हो, राइट? क्लस्टर की क्वालिटी पता चल जाती है, फिर आप ये क्लस्टर्स को डिटेल में देख सकते हो कि कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस निकाल के दे रहा है आपको, यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस हैं, कौन से ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये इनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने लगा दिया है। क्लस्टर के साइज देख सकते हो, रेशो, मतलब हम कोशिश करते हैं कि हर क्लस्टर में मतलब लोग ठीक से डिवाइड हो जाएं, ऐसा ना हो कि एक क्लस्टर में 19 है, एक क्लस्टर में एक ही है, वो भी एक अच्छा क्लस्टर एनालिसिस नहीं माना जाता, राइट? फिर ये आप ओवरलैपिंग चेक कर सकते हो, क्लस्टर्स को कंपेयर कर सकते हो इस तरीके से, गॉट इट? गॉट इट। अब अगर आप इन टर्म्स के बारे में बात करोगे, एक ये वैल्यू होती है मेजर जिसको हम यूज करते हैं टू चेक द क्लस्टर क्वालिटी, राइट? इट रेंजेस फ्रॉम -1 to 1 where a high value indicates that the object is well matched to its own cluster and poorly matched to neighboring clusters, so the quality should be good. मैम हमें इसमें पुअर फेयर गुड पता लग गया, हम्म, और क्लस्टर का ओवरलैप वाली चीज पता लग गई। हम्म। हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन से वो 13 लोग हैं और कौन से वो 7 लोग हैं इसमें, मतलब अच्छा, सेगमेंटेशन की बात कर रहे थे ना मतलब शुरू में कि कौन से वैलिड क्वेश्चन है, कौन आंसर करेगा इसको? अगर आप यहाँ जाते हो और इस पे क्लिक करते हो, फॉर एग्जाम्पल फ्लायर फ्रीक्वेंसी,
राइट। तो कौन फॉल करता है इस क्लस्टर में? वो लोग जिन्होंने 1, 2 और 4 बोला। अब समझ आया कैसे पता करेंगे? इनपुट पे गए एंड देन फ्लैग फ्रीक्वेंसी पे गए। यस, जिन्होंने 1, 2, 4 बोला वो लोग फॉल करते हैं इस क्लस्टर में। जिन्होंने इसका आंसर 1, 2 और 4 दिया। यस, ओके, तो मतलब अगर यहाँ पे अगर लार्ज डेटा हो तो एक एक करके बैठने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो भी शॉर्टकट नहीं है इसका। एक्सेल में ये चीजें क्विकली हो जाती हैं। मतलब इसमें फिल्टर लगा के वो यूज है। फिल्टर, यस। देखो ये सिर्फ एनालिसिस के लिए है, ये आपको इस तरीके से आउटपुट निकाल के नहीं देगा कि आपको लोगों की लिस्ट दे देगी इनको जाके बेचो, ऐसा ये कोई टूल नहीं है। ओके, अंडरस्टूड? ये गॉट इट। आपको एनालिसिस करके बता रहा है ये लोग जो इस तरह से बोल रहे हैं ये आपका सामान खरीदेंगे, ये पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं। ये आपके कस्टमर है, आपके प्रोडक्ट के लिए आप इस तरीके से सेगमेंट करो। आपको लगता है कि आपको एसपीएसएस लोगों की लिस्ट निकाल के दे दे जाके इनको बेचो, वो नहीं होगा। ठीक राइट, है, गॉट इट। इट। अब ये क्या है, अब वापस वहां चलते हैं, एक दो चीजें और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। ये समझ में आया आपको? आउटलायर्स एक्सक्लूड करके देख लेते हैं एक बारी। 5% तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? राइट, तो अप्लाई किया, रन किया, कुछ फर्क पड़ा? क्वालिटी वैसी है, देखो। राइट, सेम है जो रेशो था हमारा 1.75, ये इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। और दोबारा से जाओ, 5 की जगह 10% करके देखो। बेसिकली आपको ये चीजें उसमें ज्यादा दिखाएंगी बड़े डेटा में। 20 रिस्पोंडेंट्स पे क्या ही 0.3 और ये सेम है। आप ये बड़े डेटा सेट पे करना, और हो सकता है इसमें आउटलायर्स हो भी ना डेटा में। गॉट इट? इसलिए फर्क ना आ रहा हो। गॉट तो इट। टू बी ऑन द सेफर साइड ऑलवेज एक्सक्लूड एटलीस्ट 5%, आई विल सजेस्ट, ताकि कुछ है तो वो अफेक्ट चला जाए। बट ये ऐसे जाता है। आउटलायर्स के लिए क्वेश्चन किसने पूछा था? तन्वी। हाँ, तन्वी। हाँ जी मैम। Tanvi, okay, like for example, talk about safety. There were 20 people, 19 people said we are not concerned about safety, when one person said safety. तो ये outlier हो गया? यस मैम। ये इसको कहते हैं outlier. आप you just take all of you, this is for all of you, not for Tanvi. Take a big data set, big, not 20 respondents, at least 1,000 respondents, right? And do this. You will get to understand this better. Got it? और यहाँ पे ना ये डिस्टेंस मेजर करके एक चीज है, डिस्टेंस मेजर। इसमें ना दो तरीके होते हैं, लॉग लाइक्लीहुड एंड एक ये होता है यूक्लिडियन। तो अगर मैं यूक्लिडियन लेती हूँ, अप्लाई करती हूँ, कोई फर्क है? सो बेसिकली क्या हो रहा है, ये क्या होता है, डिस्टेंस प्रोसेस determines the proximity between the observations by drawing a straight line between pairs or observation. Therefore, this process measures the distance between observations by looking at the length of this line between the observations. तो ये दो तरीके होते हैं इसके लाइन के, ये वाले जो हमने पढ़े यहाँ पे। तो अब की बार जो ये वो नोट कर रहा है वो उसके थ्रू कर रहा है। अगेन फर्क क्यों नहीं नजर आ रहा किसी भी चीज में? बिकॉज ऑफ द शॉर्ट डेटा सेट। गॉट इट? बट बाय डिफॉल्ट ऑलवेज गो अहेड विद दिस। बस ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता। जो कंपनीज कैंपस में आएंगी वो इस पे कुछ क्वेश्चन पूछ ले, आपको लगेगा ये क्या है, हमने पढ़ा नहीं है। तो यू शुड एक बार नो दैट दोबारा टू मेजर्स are there are two measures of distance. I told you na, cluster analysis is based on distance. राइट मैम। Right? So how to measure that distance between the observations? जैसे एक रिस्पोंडेंट मैं हूँ, एक अर्चित है, तो हमारे रिस्पॉन्सेज में डिस्टेंस देखते हैं, वो उसी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हम कौन से क्लस्टर में जाएंगे। राइट? तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए दो तरीके हैं, लॉग लाइक्लीहुड एंड यूक्लिडियन। तो सो इफ somebody is asking you what is this, you can say this is one of the distance measure we use in cluster analysis. Understood? So this I have added from interview perspective. Understood ma'am. And this value to check the quality Understood. of the. Got it? Tell me guys, understood or not? Understood. Yes? Difficult? Yes ma'am. Guys, difficult? Not that much, but हाँ मतलब ये प्रैक्टिस से हो जाएगा मैम। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ। Yes. Am I able to explain you guys? Yes ma'am.
या यस मैम। इसमें टेक्निकल कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्निकल कुछ नहीं है, आपको देखना है वो क्लस्टर थोड़ा, इट्स सब्जेक्टिव। जैसे हम 3 बनाए, SPSS फिर कितना 4 commonly पे गए, use 5 पे, होता है? 6 पे गए, वो स्टेबल हो रहा है, तो लेट्स टेक 4, राइट। क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही 5 और 6 करने से, करेक्ट। हम्म। तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स। मैम एक बात पूछनी थी, ये आजकल इंडस्ट्री में SPSS कितना कॉमनली यूज होता है? मतलब any- ऑनेस्टली स्पीकिंग यूज नहीं होता है, मतलब मार्केट रिसर्च होता है बट नॉट थ्रू SPSS. Statistical analysis is done using Python these days in the industry. Python. Yes. बीच में R से हो रहा था, लेकिन अब R से भी बंद हो गया. Everyone is using Python. See, there is no difficulty in using the tool. The tool is simple, right? Tool is simple. You are simply adding the notes and you are not doing any technical calculation manually or anything. It is giving everything to you on clicks, right? What is Right. difficult? Difficult is understanding the concepts. तो वो चाहे आप R में करो, Python में करो, SPSS में करो, वो तो आपको सीखना ही है, करेक्ट? So you have to bring your mastery in these things. Got the point? Got it, ma'am. Now tell me one thing. Can we do cluster analysis at this data set, all of you? Yes, ma'am. Tell me. This is the loan ID, loan sanctions हुए, ठीक है? Gender, married. So this is the, actually these are the details of the people who have taken the loans. Graduation, self-employed, no. जो missing values हैं, information available नहीं है. Income, co-applicant income, in case there is a co-applicant in the loan, right? 0 means there is no co-applicant or probably no income. You have to make few assumptions, right? Loan amount, term, credit history. Just a sec. Credit history 1 means and 0 means what? पहले लोन 1 लिया नहीं means लिया कभी? good, 1 means good, 0 means not good. Credit history, right? Property area, किस एरिया में लोन स्टेटस मिला कि नहीं मिला, राइट? Yes or no? Can we do Yes, ma'am. cluster analysis for this and decide कि आगे फ्यूचर में किसको देना है, नहीं देना है? Tell me. As a group, if you want, you can do 5 minutes discussion. Because we should be able to identify the data also. किस पे कौन सा analysis हम कर सकते हैं, right? Okay. So what we have decided as a group? We have to change the data into numeric 0 to 1 or text into numbers. Okay. What else? Everyone please contribute. Anyone else with any other opinion? The categorical data would be converted into 0 and 1. Male for 0, female for Like we 1. have to convert every field like ordinal? Yes, ma'am. The categorical data, ma'am, especially. Okay. Anyone else with any different opinion? So my next task, which I'm giving to all of you, you should be very, very clear, like what kind of data we can perform regression analysis on. Think about all the different kind of data sets. One is when we are conducting the survey, we are collecting the data. That is one kind of data where we have the data on some scale, right? Like we use the data today, correct? Right, correct. Right. Second type of data, which we used in the last session, that BP weight affecting your, sorry, age and weight affecting your BP. You remember where we had 3 variables. Another one, your education affecting your income, 2 variables. Got it?
third type of data, the data which I just opened on my screen. I'm going to post it on the group, WhatsApp group, where we have different kind of information. Let me share the screen again. Mix kind of data. Like, can we convert the loan amount into ordinal kind of data? No. We can assign like male, female, 1, 2, a number. We can assign married, not married, or divorcee, whatever, 1, 2, 3, right? Dependents, how many dependents? This is a number. So what you will do, you are going to tell me in the next session what kind of analysis, what all analysis out of 3, regression, factor, and cluster, we can perform on this kind of data. If yes, we can perform, then do we need to make any data transformation, or this is a good to go data set? If we cannot perform, why we cannot perform? What is the limitation? What is the issue with the data? Got the point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I want all of you to be very, very clear on this point. आप मैम इसमें यही कह रहे हो ना कि कौन कौन से फैक्टर्स अगर हम लेंगे करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स लेके चलेंगे इसमें? आप सब इस डेटा पे क्लस्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस करो, मुझे बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? ठीक है, ठीक है। एवरीवन, यस मैम। सी पर्पस क्या Yes, है? ma'am. देखो, जो एक ग्रुप करेगा उसको 5 ग्रुप का एक्सपोजर भी मिलेगा, राइट? राइट मैम। तो पर्पस वो है कि हम कैसे किस तरीके से सोच सकते हैं। पर्पस ये नहीं है कि सही क्या और गलत क्या है, सही गलत बात की बात है। गलत चीजों को रूल जी आउट मैम। से बहुत चीजें क्लियर होती हैं, करेक्ट? वो करना है, राइट। वो करना है। डू नॉट चीट और डिस्कस। Guys, I need one file from each group. Not everybody would be submitting it, right? So if 6, I just have a doubt. files. Yeah, ma'am, am I audible? Yeah, please go ahead. Ma'am, like Vibha ma'am explained about, we need to keep in the mind like factor, regression and cluster or descriptive. Yes. मैम हम इस डेटा पे ये लगाकर देखेंगे वेदर ये लगता है या नहीं लगता है, तो फिर ये कैसे लगेगा? Yes. और मैम डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करेंगे? आई डिडंट गेट इट। mean median, standard deviation. ओके ओके। और एक और चीज जो मुझे बतानी है, आप ना सबके लिए एक ही फाइल बना सकते हो। आपको पता है ना कि जो भी हम एनालिसिस करते हैं यहाँ पे एक स्ट्रीम ऐड हो जाता है, राइट? तो जैसे आपने क्लस्टर किया, अब आपको फैक्टर करना है, सो यू विल गो टू फाइल एंड यू विल से न्यू स्ट्रीम। तो इसी में एक और स्ट्रीम ऐड हो गया। तो हर ग्रुप में 3 फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू एवरीथिंग इन वन फाइल, राइट? गॉट इट? अंडरस्टूड गाइस? Yes, ma'am. So if Yes, ma'am. 6 groups, then 6 files. And if you want to convey something, you can attach a Word file along with that SPSS file. Got it? Everyone clear with this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do it properly. It is going to help you. It is going to make a lot of things clear for all of us, right? And when we would be having the doubts, of course. So guys, how was the session? First of all, are you able to understand? Tell me if you have any other kind of expectations, or you feel, ma'am, this should not be like this, this should be like this. Anything, feel free to convey. So that, see, at the end of the day, what is the aim? The aim is that you understand it well, right? Ma'am, Right. our session was good. Ma'am, we were able to clear our concepts very well. Any other input, any other feedback? Any change you want? I don't think we are going fast. Vibha ma'am, are we fast? We are taking 2 analysis per session, not more than that. 2 hours per analysis we are investing, right? Right, ma'am. Yeah. All good. So just practice, guys. It's not that tough. Yeah. If you have the habit of forgetting, college में होती है, मुझे भी थी, तो कुछ लोगों को आदत होती है लिख के उनको ज्यादा जल्दी दिमाग में रहता है, वो भूलते नहीं है। तो आप वैसे करो, जो जिसका तरीका है वैसे करो, राइट? Everything is different. Okay, guys. So I would be uploading this PPT, updated PPT, and will share the link. Give me some time.
and I will send this data set also. Okay, Okay, ma'am. all clear? Yes, ma'am, all clear.